Hi friends. In the last class we were discussing about the simple equations. Okay, I hope you understand the basic concepts of simple equations. Also how to make the simple equations. Okay, that is word problem से कैसा इक्वेशंस बनाने का है और इक्वेशन से कैसा वर्ड प्रॉब्लम्स में लेके जाना है, तो समझा रहेगा. तो और एक इधर एक दो एग्जांपल आज भी देखते हैं. ओके, हियर देखो, इट इज द क्वेश्चन इज राजू's father's age. Okay, Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Raju's father is, now the father of the age is given. Okay, Raju's father's age, it is given that 44. Okay, 44 years. Now देखो ये इधर वेरिएबल देना है. ओके, तो वेरिएबल क्या देंगे? ओके, जो भी इसका जो फाइंड करना है उसका वेरिएबल है. इधर अपन क्या फाइंड करने बोला है? ओके, सेट अप इक्वेशन टू फाइंड राजू's एज. तो वी विल से दैट लेट ओके राजू's एज बी x. ओके, श्योर. तो अभी देखो देन व्हाट इट विल बी. नाउ वी विल मेक द इक्वेशन. ओके, यू मे अंडरस्टैंड. ओके, इस वगैरह रहेगा तो इक्वल टू देने का. अभी राजू's फादर्स एज क्या है? राजू's फादर्स एज इज 44. इज मतलब इक्वल टू ओके 5 मोर मीन्स क्या है? प्लस 5 मोर मतलब प्लस 5. ओके, देन 3 टाइम्स मीन्स इंटू 3 इंटू द एज ऑफ द राजू. अंडरस्टैंड? तो नॉर्मली इक्वेशन ऐसा नहीं लिखा जाता, कांस्टेंट जो है ओके आरएचएस में जाता है, इसलिए क्या लिखेगा? 3x है प्लस 5 इज इक्वल टू 44. ये हो गया इक्वेशन. समझा? गॉट इट? ओके, सो यू हैव टू डू लाइक दिस. फटाफट कर लो. डू फर्स्ट. ओके, पॉज करके आप कर लेना. ओके, देन वी विल गो टू द अदर एग्जांपल. ओके, ये जो अदर एग्जांपल देखो, ये शॉपकीपर सेल्स मैंगोस इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, one small and one large. The large box contain as many as 8 small boxes, okay, plus 3 loose mangoes. Set up an equation which gives the number of mangoes in each small box. The number of mangoes in the large box is given that 100. Okay, so here the number of mangoes in the large box is 100. Okay, here the number of mangoes in the large box is equal to what it is given, it is 100. Okay, तो अभी देखो, अभी क्या फाइंड करना है? Okay, we have to find the gives, okay, which gives the number of mangoes in each small box. Okay, now let number of mangoes in each small box be x. अभी देखो इक्वेशन कैसा बनेगा. ओके, ओके 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, one small and one large. The large box contain as many as 8 boxes. Okay, then how many? Now large box how many mangoes it will contain? You know that it is 100 mangoes it will contain. Okay, then okay contains as many as, now it is 8 small boxes, that is 8x. What it is? 8x is the number of mangoes in 8 small boxes, plus how many loose are there? Now they told that there is a 4 loose mangoes, that is plus 4. Then okay, 8 small boxes can place in the large box, plus 4 loose mangoes will come. So in small box, if it is x mangoes are there, then 8 small boxes, how many mangoes will be there? Okay, 8 into x, 8x mangoes will be there. Okay, plus 4 loose mangoes. Okay, so that the total will be 100. So while writing, we will write it as 8x plus 4 is equal to 100. Got it? Fine. Write it down. Okay, this making equation is very important. वेरी इंपॉर्टेंट. आगे भी आपको बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान से करना. ओके, ठीक है. अभी अपन एक्सरसाइज में जाते हैं. देखो हियर जो है 4.1 एक्सरसाइज.
देखो कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, आपको एक ये दिया है और उसका लास्ट कॉलम देखो, स्टेट वेदर द इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। अभी देखो इक्वेशन सैटिस्फाई कभी होता है, LHS इज इक्वल टू RHS है तभी इक्वेशन सैटिस्फाई होता है। अभी वैल्यू इन्होंने दिया है। अभी फर्स्ट देखो इधर क्या दिया है, x+3 इज इक्वल टू 0। ओके, x+3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है इफ। तो अभी इधर LHS देखते हैं, तो LHS इज इक्वल टू x+3, ओके दैट इज 3 + 3 ओके इज इक्वल टू 6 है, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा, ओके वेदर द इक्वेशन सैटिस्फाई, द आंसर इज नो। ओके, सो हियर यू हैव टू राइट द नो। Okay, here you will write a no. Okay, like this. By you have to do it. Okay, which is not is equal to 0 and which is not is equal to RHS. Okay, like this. Do first. Okay, you have to do the steps. It is not like that. Just you will fill the yes or no in the table. Okay, you have to do these steps. Okay, आपको ये steps करना है। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट वन देखते हैं। किया? ओके, पॉज करके कर लेना। ओके, नेक्स्ट जो है ओके x+3, अभी देखो इधर x+3 इज इक्वल टू 0। अभी इफ लोग ने वापस x क्या दिया है, 0 दिया है, तो इधर क्या आएगा LHS, तो LHS इज इक्वल टू ओके क्या आएगा 0 + 3। क्या है 0 + 3 इज 3, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉट इज इक्वल टू RHS। सो हियर ऑल्सो व्हाट द आंसर इज ओके नो। ओके, सो हियर ऑल्सो द आंसर इज नो। ओके, सो यू हैव टू राइट दैट नो। श्योर? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेंगे पॉज करके करना आपको। ओके, नेक्स्ट। तो अभी देखो नेक्स्ट क्या है, इट इज x+3, अगेन x+3 इज इक्वल टू 0। ओके, और क्या है, इफ x इज इक्वल टू -3। अभी देखो ये जो केस में LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू ओके -3 + 3। अभी -3 + 3 बोले सेम नंबर विथ ऑपोजिट साइन क्या है, 0 है, बराबर। सो 0, सो इज इक्वल टू RHS। सो हियर व्हाट इज द आंसर इज यस। ओके, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, गेटिंग। ओके, तो आपको इधर क्या लिखना है, आपको इधर लिखना है यस। ओके, समझ रहे हैं ना आपको? ओके, स्टेप्स लिखना है। ओके ओके, ठीक है, तो आप लोग पॉज करके करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, x - 7 इज इक्वल टू 1। अभी इधर इफ x इज इक्वल टू 7। अभी देखो अभी LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू x - 7। ओके, सो विच इज इक्वल टू 7 - 7 इज इक्वल टू 0। मगर RHS तो क्या है, which is not is equal to 1, so which is not is equal to RHS. Okay, therefore ये क्या है, it does not satisfy. So the answer is again what here will come here no. Okay, so the next one, here the next is x is equal to 8. Okay, okay, किया आपने? Okay, then the next okay, x is equal to so question is same only, that is x - 7 is equal to 1. अभी if x is equal to 8, तो LHS क्या है, so LHS is equal to okay 8 - 7 is equal to 1 is equal to RHS. So here it is yes. Okay, so it is satisfied. Okay, so you have to write here yes. Okay, now the next is okay 5x is equal to 25. Okay, you have to do it. Okay, 5x is equal to 25. Okay, here the if x is equal to क्या दिया हम लोग ने 0, so that sorry here it is 5x is equal to okay is equal to 25. So if so LHS क्या है, LHS is equal to okay 5x is equal to 5 into 0 is equal to 0, which is not is equal to 25, which is not is equal to RHS. So it does not satisfy. So the answer must be no. Okay, so here the answer must be no. Okay, the next is x is equal to 5. Okay,
पूरे आपको ये पूरे स्टेप करना है. ओके, यू हैव टू डू ऑल द स्टेप्स. ओके, पॉज करके कर लेना आप लोग, जल्दी जल्दी जा रहे तो. ओके, नेक्स्ट चीज है क्या बोला है यार, इट इज एक्स इज सेम क्वेश्चन 5x इज इक्वल टू 25. अभी इधर इफ x इज इक्वल टू क्या दिया है 5 दिया है. ओके, तो x इज इक्वल टू 5 है तो LHS क्या है, इट इज ऑफ 5x. सो इट इज ऑफ 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू RHS. बराबर मिल रहा है ना. सो दैट द आंसर इज यस. ओके, सो हियर आपको क्या लिखना है, हियर इट इज यस लिखना है. ओके, श्योर. ओके, कर लो. देन द नेक्स्ट, but it is same question, that is of 5x is equal to 25. Now here the value of x is given that x is equal to if क्या दिया है -5. So here the LHS, what is LHS is equal to 5 into -5 is equal to -25. Is -25 is equal to 25? No. So is not is equal to RHS. Therefore here it is also no. Okay, so it does not satisfy. Here the no is the answer. ओके, फाइन. करेंगे आप लोग. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, इधर देखो, इधर क्या है क्वेश्चन, m/3 इज इक्वल टू 6. तो इधर फर्स्ट m का वैल्यू क्या है, इफ m इज इक्वल टू, ओके उन लोगों ने दिया है कि -6. ओके, तो LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू -6/3 इज इक्वल टू -2. ओके, तो -2 इज नॉट इज इक्वल टू 6. बराबर है. सो इज नॉट इज इक्वल टू RHS. So it is also no. Okay, so इधर क्या आएगा, no आएगा. Sure. Then the next question. Next question is again the same question. Okay, that is m/3 is equal to 2. Now here if m is equal to what it is given, that 0. Okay, so that LHS is equal to m/3 is equal to 0/3 is equal to 0 is not is equal to RHS. Okay, therefore here also it is no. So you will write the answer here no. Okay, you have to do these steps. It is not like that yes or no, no. Okay, then the next step. Okay, here it is. Yeah, m/3 is equal to 2. Okay, so m/2 is equal to 2. So here if m is equal to 6, so here LHS is equal to 6. m/3 is equal to 6/3 is equal to 2 is equal to RHS. If it is equal to RHS, then the answer is yes. So here what will come, here will come yes. Understand? So you have to do like this, verifying it is. Sure, समझ में आया. ये पॉज करके करना है, पूरा करके आपको आगे करना है. ठीक है, फाइन हो गया करके. तो विल गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, तो इधर देखो क्या बोला है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट. अब ये सॉल्यूशन मीन्स सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं. तो सेम थिंग अपन जो अभी किया वही करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो इधर फर्स्ट इज ये क्या है, इस n+5 is equal to 9. Okay, then value is given that n is equal to 1. तो इधर क्या है LHS, क्या है LHS is equal to n+5 which is equal to 1 + 5 is equal to 6 which is not is equal to 9 which is not is equal to RHS. Therefore we can say that n is equal to 1 is not a solution. Like this we have to do. समझ में आया, कर लो फटाफट. ओके, तो नेक्स्ट वन क्या है, इट इज ऑफ 7n plus 5 is equal to 90. Okay, what the value of n is given, that -2. Okay, इधर भी LHS, क्या है LHS is 7n plus 5. So it is of 7 into -2 plus 5. Okay, so which is equal to -14 plus 5. What is -14 plus 5 is -9, which is not is equal to 19, which is not is equal to RHS.
Therefore क्या लिखेगा, n is equal to -2 is not a solution. Got it? ओके तो अभी दूसरा जो है, ओके इधर क्या है सी वाला, दैट इज n+5, ओके 7n+5 इज इक्वल टू 90. अभी इधर n का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, दैट इज हियर. सो LHS is equal to 7n+5, that is which is equal to 7 into 2 plus 5 is equal to 14 plus 5 is equal to 90. So is okay is equal to RHS. अगर equal to RHS मिला तो क्या लिखेगा, therefore n is equal to 2 is a solution. समझा आपको? Okay, तो next one देखो. The next one it is of 4p minus 3 okay is equal to 30. Here p का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है. So here LHS is equal to 4p minus 3, तो is equal to 4 into 1 minus 3 बराबर. So which is equal to 4 minus 3 is equal to 1, which is not is equal to 13, not is equal to RHS. Therefore we can say that okay p is equal to 1 is not a solution. समझ रहा है? Getting? Okay, then the next one. Here it is 4p minus 3 okay is equal to 13, p is of -4 given. Now here LHS is equal to 4p minus 3 is equal to 4 into -4 minus 3, 4 4s are 16 minus 3 is equal to -90. Okay, is it equal? Not equal to 13, so which you can say not is equal to RHS. Therefore okay for p is equal to -4, p is equal to -4 is not a solution. Got it? समझ में आया? Okay, then the last one. Last one क्या है देखो, इधर 4p minus 3 is equal to 13 और p is equal to क्या दिया है, 0 दिया है. Okay, so LHS is equal to 4p minus 3, so which is equal to 4 into 0 minus 3 is equal to 0 minus 3 is equal to -3, which is not is equal to 13. Okay, which is not is equal to RHS. Therefore okay क्या बोलेगा, p is equal to 0 is not a solution. समझ में आया? ओके, पॉज करके कर लेना है सब, ठीक है? टेक योर टाइम, ओके, आराम से करना है आपको. ओके, देन द नेक्स्ट वन. ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर में. अभी ट्रायल एंड एरर में मतलब डायरेक्ट नहीं बना, कुछ कुछ वैल्यू अपन डाल के देख रहे हैं, फिर उसका वैल्यू फाइंड करने के बाद अपन क्या मिल रहा है, मतलब 1 2 3 ऐसा आपका मर्जी से करने का. अभी फॉर एग्जाम्पल अभी 5p + 2 is equal to 17. अभी पहला क्या है, इफ p is equal to 1 तो LHS is equal to क्या आएगा, 5p 5 into 1 ओके प्लस 2 is equal to 5 + 2 is equal to 7 बराबर है. सो नॉट इज इक्वल टू RHS. अंडरस्टैंड? तो नहीं चलेगा. नेक्स्ट क्या लिखना है, ओके इफ p is equal to क्या आएगा 2 तो क्या आएगा, LHS is equal to okay 5 into okay 2 plus 2 is equal to 10 plus 2 is equal to 12 which is not is equal to RHS. तो वो भी नहीं चलेगा. तो ऐसा करते 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 जाएगा. तो मैं क्या कर रहा है, अभी p is equal to 5 डाल रहा है, नो p is equal to 3 डाल रहा है. नेक्स्ट यस इफ p is equal to 3 तो LHS is equal to क्या आएगा, 5 into 3 plus 2 is equal to 15 plus 2 is equal to 70. मिल गया. Therefore we can say that okay p is equal to 3 is a solution. आया समझ में?
ओके ऐसा इसको बोलते हैं कि क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। अरे डाल के देखने का है। ओके जब तक सही आएगा तब तक अपन को करना है। ठीक है, करेंगे, जल्दी करें। ओके नेक्स्ट देखो, इधर जो है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, बराबर है। तो इधर देखो, इधर क्या करने का, इधर भी ट्रायल एंड एरर में दैट इज इफ पहले क्या करेंगे, m इज इक्वल टू अपन 1 डालेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, इट इज LHS इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 1 माइनस 14 ओके इज इक्वल टू 3 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 11। ये तो बहुत ये है, तो अपन थोड़ा स्किप करके आगे जाते हैं। LHS दैट इज इफ ओके m इज इक्वल टू अपन क्या डाल रहे हैं, ओके एक 4 डालेंगे। सो हियर LHS इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 4 माइनस 14 ओके, सो विच इज इक्वल टू 3 4 12, 12 माइनस 14 इज क्या है, माइनस 2 ओके, वो भी नहीं चलेगा, विच इज नॉट इज इक्वल टू RHS लिखना, इधर भी विच इज नॉट इज इक्वल टू RHS। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, इफ m इज इक्वल टू क्या करेगा, 5 डालेंगे। ओके तो 5 डालेगा तो क्या आएगा, दिस LHS इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 5 माइनस 14 ओके इज इक्वल टू 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इज इक्वल टू RHS, बराबर, वो भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट इफ m इज इक्वल टू क्या करेगा, 6, तो LHS इज इक्वल टू 6 3 इंटू 6 ओके 3 इंटू 6 माइनस 14, सो 18 माइनस 14 ओके इज इक्वल टू 4। सो अभी मिल गया ना, इज इक्वल टू RHS। ओके देयरफॉर क्या बोलेगा, देयरफॉर वी विल से दैट ओके p इज इक्वल टू सॉरी m इज इक्वल टू ओके 6 इज ए सॉल्यूशन। आए समझ में, लाइक दिस आपको करना है। ठीक है, करेंगे, समझ में आया। सो इतना कर लेना अच्छे से। ओके वापस करो। ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फॉर टुडे विल स्टॉप हियर। ओके हैव ए नाइस डे, टेक केयर।